Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. My name is Rohit Ranjan and I am teaching here all basic things for you. Hello friends, today we are going to study about scope of environment and importance of environmental studies. Here we are discussing about environmental studies. Discipline has multi-level and multi-level scope. Environmental studies discipline has multiple and multi-level scopes. This study is important and necessary not only for children but also for everyone. The scope are summarized as follow. मीन्स पर्यावरण अध्ययन का दायरा पर्यावरण अध्ययन का अनुशासन में कई और बहुस्तरीय स्कोप है। यह अध्ययन न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। स्कोप संक्षेप में इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, द स्टडी creates awareness among the people to know about the various renewable and non-renewable resources of the region, the endowment of potential patterns of utilization and the balance of various resources available for the future use in the state of country are analyzed in the study. It means इस अध्ययन से लोगों में इस क्षेत्र के विभिन्न नवीनीकरण और अपरिवर्तनीय संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा होती है। अध्ययन में किसी देश की स्थिति में उपयोग के लिए बंदोबस्त या क्षमता उपयोग के पैटर्न और विभिन्न संसाधनों के संतुलन का विश्लेषण किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, it provides the knowledge about ecological system and cause and effect relationship. It means that यह परिस्थिति प्रणालियों और कारण और प्रभाव संबंधों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट, it provides necessary information about biodiversity and richness and the potential degree to the species of plants, animals and microorganisms in the environment. It means यह जैव विविधता, समृद्धि और पर्यावरण में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के लिए संभावित खतरों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 4, द स्टडी इनेबल्स one to understand the cause and consequence due to natural and man-induced disaster, floods, earthquake, landslide, cyclone, etc. and pollution and measure to minimize the effect. इसका मतलब अध्ययन प्राकृतिक और मुख्य प्रेरित आपदाओं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि और प्रदूषण प्रभावों को कम करने के उपायों के कारण और परिणामों को समझने में सक्षम बनाता है। पॉइंट नंबर 5, इट इनेबल्स वन टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टू environmental issue before declining the alternative course of action. It means यह कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रम को तय करने से पहले पर्यावरण के मुद्दों पर वैकल्पिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। Importance of environmental studies. Environmental studies is based upon comprehensive views of various environmental systems. It aims to make the citizens component
to do a scientific work and to find the practical environmental system, practical solution to current environmental problem. The citizens acquire the ability to analyze the environment parameter like the aquatic, terrestrial and atmospheric system and their interaction with the biosphere and atmosphere importance. मीन्स पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरण अध्ययन विभिन्न पर्यावरणों प्रणालियों के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित। इसका उद्देश्य नागरिकों को वैज्ञानिक कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है और वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधानों का पता लगाना है। नागरिकों को जलीय, स्थलीय और वायुमंडलीय प्रणालियों जैसे पर्यावरणीय मापदंडों का विश्लेषण करने और जीवमंडल और एंथ्रोपोस्फीयर के साथ उनकी बातचीत करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसका महत्व है पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब दुनिया की आबादी विशेष रूप से विकासशील देशों में खतरनाक दर से बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, द नेचुरल रिसोर्सेस काउंटडाउन The natural resources endowment in the earth is limited. The method and techniques of the exploiting natural resources are advanced. मीन्स पृथ्वी में प्राकृतिक संपदाओं का संसाधन बंदोबस्ती सीमित है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन के तरीके और तकनीकी उन्नत है। पॉइंट नंबर 3, the atmospheric are overexploited and there is no foresight of leaving the resources to the future generations. The unplanned exploitations of natural resources lead to pollution of all types and all the levels. संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को छोड़ने की कोई दूरदर्शिता नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के अनियोजित दोहन के कारण सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं और सभी स्तरों पर होते हैं। पॉइंट नंबर 4, द पोल्यूशन एंड डिग्रेडेड environmental seriously affect the health of all living things on the earth including man. प्रदूषण और अपमानित वातावरण पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पॉइंट नंबर 5, पीपल शुड टेक अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ deteriorating environment and begin to take appropriate actions to space the earth. लोगों को बिगड़ते पर्यावरण के लिए एक संयुक्त जिम्मेदारी लेने चाहिए और पृथ्वी को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए उचित कार्य करना शुरू करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग are needed to save the biodiversity and species extinction. जैव विविधता और प्रजातियों को बिल्कुल विलुप्त होने से बचाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।